डायरेक्टर नहीं जानता है कि कारपेंट्री क्या होती है, वो नहीं जानता है कि सिंगिंग, म्यूजिक और ये सब क्या होता है, लेकिन ही नीड्स एन आर्ट डायरेक्टर. वो नहीं जानता कि टेलरिंग क्या है, लेकिन ही नीड्स अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर. सो ही नीड्स ऑल ऑफ दीज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और उनके साथ वो कहानी पर्दे पर लाता. ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा, और मुझे लगा ये मुझे करना चाहिए. तो ये बात कि मुझे डायरेक्शन करना है, ये मेरे तीनों दोस्तों को पता थी, दीपक को भी, आमिर को भी और शाहरुख को भी. अच्छा. एंड उनमें एक अलग किस्म का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था मेरे लिए अच्छा. कि आशु तो अच्छी पिक्चर बनाएगा. घर पे कभी आशुतोष जी ने गाना नहीं गाया था? नहीं. या कुछ ऐसे नौटंकी नहीं की थी? कुछ नहीं. कभी ऐसे आईने के सामने खड़े होके कि मैं कितना सुंदर हूँ, ये भी नहीं हुआ था? कभी भी नहीं. What? That is shocking. Okay. Yeah, but shocking, and वो सच है. Stars Express. Radio City 91.1. What an honor it is to interview somebody जिनकी body of work में मुझे हमेशा बहुत ही class, caliber और कहीं ना कहीं Indianness दिखी है. And the fact कि उनके production house ने 20 साल complete किए हैं, and that feels like a blip in a world that so much is happening and yet seems so fresh. Ashutosh Gwarekar sir, I don't know where to start. I just know that I'm a huge fan, and you know that from the very beginning. And you look as charming as a boy today. I don't know what's happening. Are you like reversing your age? क्या हो रहा है आपके साथ? I have no clue. But congratulations on such a momentous year, and thank you for sharing this entire journey with us today that you're about to. Yes. Thank you, Archana. It's lovely to be here, and yeah, it is a momentous year for me actually. Yeah. So it's great. Do you feel कि अभी आपकी लाइफ जो है वो full circle में आ गई है, क्योंकि शुरुआत तो एक्टिंग से हुई थी. कहीं ना कहीं आप डायरेक्शन, राइटिंग में इतने ज्यादा लीन थे that you'd forgotten ये पैशन के बारे में. Yeah. And would I be right in saying that it was ignited at some point when Ventilator happened, or was it the OTT, or where did this fire of the actor come back? Actually, the fire of the actor had never left me. जी. I was in a way utilizing those skills जी. while directing. Because if I had to explain characterizations, or if I had to explain scenes to actors or to my entire crew, I had to read the script. And in reading, I would have to enact almost how every character behaved, or what exactly I had in mind for that. So acting was always there, lingering behind, till a nice part came by. Because till a filmmaker doesn't feel that I fit a part जी. and I suit the film, they have not approached me. So it came in the form of Rajesh Mapuskar for Ventilator, and I really loved the part. Priyanka was producing it, and I just said yes. And it needs to be in a gap of 2 movies. Yeah. Otherwise, it's difficult to find time to do both, because directing itself is also very, very difficult. You need complete focus on it. I'm going to start with a bit of numerology, क्योंकि ये मेरी एक देन है और मैं बचपन से नंबर्स में बहुत ज़्यादा लीन रही हूँ. Okay. To ask you कि नंबर 6 की सबसे बड़ी खूबी होती है कि they're very sensitive, very sensible, but sometimes things affect them even more than normal people do because they are very receptive. बहुत ज़्यादा होते हैं. Would it be true to say in your case कि बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं, it impacts your entire process because आपका process इतना लंबा है, you're so complete in what you do कि आप एक भी चीज़ उसमें से जाने नहीं देते हो, and that I don't know if that's an asset or a hindrance in your case, है ना? No, I would say I feel blessed every time there's an opportunity to make a film or to just be in front of the camera acting. And then if you have that opportunity, you have to be honest with it. You have to be focused and dedicated to it. And from there arises my quest actually, that if you're capturing something for the screen, it has to be, in my eyes, the most detailed and the most correct. I should feel comforted after even 4 years, 5 years, that I look back at the product and say, I've done my best. If the film has worked, great. If it's not worked,
not a problem, but I did my best. So that is very important for me. So the quest is because you're trying to create something for eternity. पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है आपके लाइफ में, आई एम गोइंग टू कम टू दिस क्वेश्चन अ लॉट लेटर अबाउट द कॉप यूनिवर्स दैट यू मैनेज टू कैप्चर एंड सो मच ऑफ हॉरर एंड थ्रिलर एंड मिस्ट्री. देयर इज समथिंग that surrounds your career graph. But I want to start from the very beginning. Yeah. Acting का कीड़ा कब लगा? And you are a now celebrated actor as much as you're a director. I would think because OTT में जब आपको इतना प्यार मिल जाए, you know, there's a different universe there. Tell us about that first tryst when you're watching a movie और आपको लगा अब मुझे यही करना है. नहीं, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, बिकॉज मैं जब फिल्में दिखता था बचपन से, मेरे मन में ऐसे कभी नहीं था कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊँगा, फिल्म बिजनेस में आऊँगा या एक्टिंग करूँगा, या देयर वाज नो सच थॉट्स. Oh my God. मीठी बाई कॉलेज जब मैंने ज्वाइन किया एंड आई वांटेड टू डू साइंस, और जब मैंने साइंस की 12th में मैंने एग्ज़ाम दी, माई परसेंटेज वॉज नॉट वेरी एक्साइटिंग, सो आई वॉज फोर्स टू डू BSc. और जब मैंने BSc करना शुरू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मैं एक्चुअली करूँगा क्या, यू नो, व्हाट एम आई गोइंग टू डू विद केमिस्ट्री एंड ऑल ऑफ दैट. एंड फॉर मी द जो एवेन्यूज़ मेरे सामने थे, वो मीठी बाई कॉलेज बहुत जाना माना है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए. यानी ड्रामा है या फोक डांस है या सिंगिंग एवरीथिंग. तो मैंने सब में हिस्सा लिया, सब में ऑडिशंस दी, ये ना जानते हुए कि मुझे लेंगे नहीं लेंगे, बट आउट ऑफ कंप्लीट श्योर कि देखते हैं क्या होगा. So once again, घर पे कभी आशुतोष जी ने गाना नहीं गाया था? नहीं. या कुछ ऐसे नौटंकी नहीं की थी? कुछ नहीं. कभी ऐसे आईने के सामने खड़े होके कि मैं कितना सुंदर हूँ, ये भी नहीं हुआ था? कभी भी नहीं. What? That is shocking. Okay. या बट शॉकिंग, एंड वो सच है. मैं सरप्राइज हुआ कि मुझे सारे जितने मैंने ऑडिशन दिए थे सब में मैं सेलेक्ट हो गया. सो आई वॉज द बिजिएस्ट पर्सन in college for those 3 years. I mean, Once again, sir. हाँ. Mithi Bai College, thank you. आपकी वजह से we have Ashutosh Guwarekar. This is huge. Yeah. मुझे एग्जाम से एग्जाम्शन मिला था because I became a student that was representing the college. Excuse me. Yeah. एंड दूसरी खासियत ये थी कि फोक डांस में मेरी जो फोक डांस में 6 कपल होते हैं, हाँ. 12 डांसर्स होते हैं. तो मेरी जो पार्टनर थी वो सुनीता थी, एंड दैट्स वेयर वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड What extra curricular activities है, क्योंकि बहुत ही एक्स्ट्रा चीज है भाई. हाँ. So it's been quite a great learning. मतलब मेरे लिए मिठी बाई कॉलेज केमिस्ट्री के लिए तो है ही, बिकॉज आई डिड माई केमिस्ट्री, बट इट गेव मी माई वोकेशन इन अ वेरी डिफरेंट वे. ये जो फुल मुझे जो प्यार हुआ एक्टिंग का, या अंडरस्टैंडिंग हुई कि मुझे ये मेरा फील्ड है, ये मुझे मिठी बाई से मिला. इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? तो कोई तो स्टेज पे ऐसा मोमेंट होता है कि आपको बहुत रोरिंग तालियां मिल रही हैं और फिर आपको लगता है चलो इसमें करते हैं, अभी ऑडिशन करना शुरू करते हैं. एंड ऑडिशन का प्रोसेस इज जहां एक्टर बनता है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको रोल मिले ना मिले ये तो बात की बात है, पर आप ऑडिशन कर रहे हो तो आप अपने सपने में लगे हुए हो. तो ये आपका सपना कब शुरू हुआ था और कितने ऑडिशंस देने पड़े होली तक? नहीं, मैं एक्चुअली बहुत नसीब वाला रहा हूँ, क्योंकि सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में जब मैं जा रहा था, तब मेरा एक नाटक था, ये नाम था नाटक का, और ये नाटक नौशील मेहता ने डायरेक्ट किया था तभी. नाटक देखने के लिए केतन मेहता जी आए थे. अच्छा. और वो तभी कास्टिंग कर रहे थे होली की, उनकी पहली फीचर हिंदी फिल्म. तो उनको मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, मुझे बैक स्टेज मिले और मुझे उन्होंने होली ऑफर की. तो फॉर मी इट्स बीन समथिंग. एंड वहाँ से मेरी फिर फिल्म के दुनिया में मेरी शुरुआत वैसे हुई. एंड होली के पोस्टर में आपका ही फोटोग्राफ है? जी. So beautiful. When I saw it, I was like, oh my God. And we used to always think, oh, it's Amir sir's first movie. But the truth is, हम सबकी एक्चुअली, आमिर, अमोल गुप्ते. आप कह रहे थे कि होली में 3 लोगों के लाइव्स मतलब लॉन्च हुई थी, गुप्ते सर, यू एंड आमिर खान. और बहुत सारे थे एक्चुअली. अच्छा? हाँ, नीरज वोरा भी था. सो आमिर, अमोल, नीरज, परेश रावल का, ये एक्चुअली पहली फिल्म थी परेश की.
in a very special appearance का small part. लेकिन सबसे ज़्यादा होली के वक्त ये इसकी शूटिंग हमारी हुई थी FTI में, पुणे में. तो पहली बार हम मतलब वहाँ पे मैंने पहली बार सबटाइटल फिल्म देखी बिकॉज इट्स वर्ल्ड सिनेमा. एंड मुझे तभी ये लगा था कि बहुत मुश्किल हो रही थी कि विजुअल भी देखो, नीचे पढ़ो भी. फॉर मी इट वाज तभी इतना कॉमन भी नहीं था. हाँ. तो फॉर मी FTI became from college straight into FTI. My God. For those 40 days of shooting. So it was a great learning experience. So as I was saying कि मेरा नसीब बहुत अच्छा है. I find myself very fortunate. I work very hard, but I feel you need good luck also at the same time. एक मैग्नेट होता है दैट इन द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा यू नीड टू बी अ विजुअलाइजिंग पर्सन. मतलब आपको पता होना चाहिए आप कैसे दिख रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं, स्पेशली एज एन एक्टर, बिकॉज आप दोनों साइड पे नहीं हो सकते हो. एंड आई डोंट थिंक उस जमाने में यू ऑल हैड द कि मुझे हाँ दिखाओ कि सीन कैसे हुआ, वो पता नहीं था कि नहीं था. नहीं बिल्कुल भी नहीं था. वीडियो असिस्ट बहुत बाद में आया. तो आपने तो तभी इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज तब क्या होता था, शॉट होने के बाद हम एक्टर्स एक दूसरे को पूछते थे कि कैसा हुआ, हाउ वाज आई. तो एक्टर पूछते थे यू वर गुड बट हाउ वाज आई. सो दैट वाज आवर, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स द डायरेक्टर सेइंग ओके एंड डायरेक्टर सेइंग कि गुड शॉट, वी वर हैप्पी, बट स्टिल देयर यूज्ड टू ऑलवेज बी कि टिल ये हम पर्दे पे नहीं देखेंगे हमें एक्चुअली एहसास नहीं हुआ कि हमने अच्छा किया है कि नहीं किया. हाउ डिड यू मेक दैट चॉइस कि अभी हमने सिनेमा किया है पर मैं टीवी करूंगा? बिकॉज ऑनेस्टली TV was never looked on upon when you compare cinema and television. एक दायरा है उसका कि इसका इतना रुतबा नहीं, इसका बहुत है, और आपकी शुरुआत ही सिनेमा में हुई in that sense. So how did आशुतोष जी से कि चलो टीवी करते हैं कि that came? नहीं, that also, and तभी ये ऐसा डिफरेंशिएशन था नहीं था. टेलीविजन आज भी मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट मीडियम है. अभी तक हमने टीवी को उतना एक्सप्लोर नहीं किया है जितना करना चाहिए था. लेकिन होली के बाद माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट वाज कच्ची धूप. ओह वाह. जो अमोल पालेकर जी ने बनाई थी और चित्रा पालेकर जी ने लिखी थी. तो वो मेरा टेलीविजन इमीडिएट था. और दोज आर द गोल्डन डेज ऑफ दूरदर्शन का टेलीविजन, जहाँ पे बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग होता था. तो मुझे ऐसे कभी डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ. आज भी मुझे लगता है वेब सीरीज अब नया फॉर्म आया है, वो भी हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. अगर आपने नहीं किया अब तक, तो अ पर्सन हु इज फ्रॉम फिल्म शुड डेफिनेटली ट्राई मेकिंग वेब सीरीज. तो आई थिंक अल्टीमेटली इट्स अबाउट क्रिएटिंग, टेलिंग अ स्टोरी. फॉर्म्स अलग अलग है. जब आपने टेलीविजन में शुरुआत की एंड इट वाज हेक्टिक बैक देन, मतलब इतना इजी नहीं था. वो आपके क्या शेड्यूल रहती थी? वो यू एक सेट से दूसरे सेट, क्या आप एक टाइम पे बहुत सारी सीरियल्स कर रहे थे, क्या था वो दौर? एक बीच में ऐसा समय आया था जहाँ पे मल्टीटास्किंग हो रहा था इन टर्म्स ऑफ सीरियल्स. कच्ची धूप भी थी, सर्कस वाज बीइंग मेड, वो नाम की दूसरा शो हो रहा था, CID हो रहा था. आई मीन देयर वाज एट वन पॉइंट थोड़ा सा इट्स अ हैप्पी स्पेस ऑल्सो. लेकिन बहुत मुश्किल फेज भी होता है बिकॉज एज एन एक्टर आपको फ्रेश भी दिखना है, आपको सारी लाइनें याद रखनी है, माइंड हैज टू बी फ्रेश. लेकिन एक मजा है उसमें. कहाँ शूट कर रहे थे आप सब? Where all were you spread out? ये right across Mumbai up to I would say Pune, because हर एक की लोकेशंस अलग अलग होती थी. सर्कस कहाँ शूट हो रहा था? सर्कस 3 किश्तों में हुआ. उसकी शुरुआत हुई गोवा में. ओह. फिर हम आए रत्नागिरी, फिर पुणे, फिर सातारा और फिर पुणे. इसकी वजह ये थी कि सर्कस जो तब उसका जो एक टूर था, वो उस सिटीज में था. अच्छा, राइट. तो हम सर्कस के साथ ट्रैवल कर रहे थे पूरा यूनिट. पर इतना इंटरेस्टिंग है कि आपके करियर की शुरुआत आमिर एंड शाहरुख के साथ कहीं ना कहीं है. इट्स सच एन इंटरेस्टिंग trajectory to have the two most popular Khans on your sides. Yes, and all being introduced at the same time, तो as co-actors, एक्टिंग में भी ऐसा है कि आप एक दूसरे की स्टाइल्स देख के, अप्रोचेस देख के आप पे एक प्रभाव पड़ता है उसका. आप फिर कोशिश करते हैं कि अच्छा ये टेक्निक इसने जो एम्प्लॉय किया है, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ. ऑल दैट हैपेंस व्हिच इज वंडरफुल.
एंड बोथ आमिर शाहरुख, आई वुड इवन से दीपक तिजोरी, बिकॉज दीपक ऑल्सो मेरे साथ तभी कॉलेज में से, मकरंद देश पांडे, नीरज वोरा, तो हमारे लिए मीठी बाई कॉलेज बिकेम दैट, हमारा NSD वो था. भाईदास was our NSD. Well, what were your learnings from Amir and Shahrukh? They were also as young as you were. Yeah, तो ऐसे yeah. learnings तो नहीं बोल सकते, but you're a very perceptive person, और I'm sure as an co-artist आपने वो कुछ परख लिया होगा कि इन दोनों में एक खास चीज है. आई थिंक आमिर में एक जो क्वालिटी है किसी भी चीज़ को समझ लेने की और फिर उसको क्रिएट करने की, वो चाहे किरदार हो, या चाहे कोई कहानी हो, हाउ टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग ऑफ इट एंड देन अप्लाई. गोते खाते हैं उसमें, like he literally delves into it. हाँ. शाहरुख में स्पॉन्टेनिटी कमाल है. मतलब शाहरुख एक बार सुन लेता है, लेकिन उसके बाद ही अप्रोचेस इट विद ग्रेट स्पॉन्टेनिटी. And these were things you noticed then. We noticed then, yeah. So different, na? Very, very different, very different. And so we are so, especially in circus, इतने अलग अलग एक्टर्स होते थे तभी, कि ये पवन मल्होत्रा भी है, नीरज वोरा भी है, हैदर अली जी भी हैं, जो बहुत डिफरेंट अप्रोचेस हैं एक्टिंग के. अब आप एक साथ आ गए हो, इट्स अ बिग टास्क फॉर अजीज जी एंड सईद जी एंड कुंदन जी एट दैट टाइम टू डायरेक्ट ऑल ऑफ अस टुगेदर. तो बहुत बहुत मज़ा आया था. तभी आपको कुछ याद है एज इंडियन, आई डोंट नो इंडियन, इट्स अ यूनिवर्सल थिंग कि हमारे जब पेरेंट्स हमको कोई चीज़ को लेके बहुत खुश होते हैं तो वी फील वी आर डूइंग द राइट, वी आर इन द राइट पाथ. एक कोई सराहना आपके फैमिली से, बिकॉज आई नो महाराष्ट्रियंस आर वेरी लाइक दे टोन डाउन, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहते हैं चीज़ों को लेके, बट वाज देयर समथिंग दैट योर पेरेंट्स एवर complimented you with and then you felt you were on the right track तभी आपके initial career में? I would say right from the first film, होली. जब होली मेरे पेरेंट्स ने देखी तो उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा. मेरा जो बचपन है ऐसे रहा है कि जब भी फिल्में रिलीज होती थी फ्राइडे सैटरडे, तो मेरे पेरेंट्स मुझे ले चलते थे. So right from age 5 onwards, I've been watching a lot of movies. अच्छा, it was a family thing. It is a family thing always. और थिएटर जाना, हाँ. exhibitions में जाना, art exhibitions. तो it has been a part of the growing up process. So beautiful. तो जब केमिस्ट्री का स्टूडेंट जब फिल्म में आया तो फॉर माई पेरेंट्स I thought first they'll be shocked कि ये क्या, what does this happen, you're supposed to do this and you're now acting as a career. अच्छा, shock था थोड़ा. But they were very, very supportive. In fact, they were very excited. Yeah. और जब टीवी में आते हैं तो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है और यू बिकम अ पार्ट ऑफ सो मेनी पीपल्स फैमिलीज. Yes. तो उस दौरान आपके साथ क्या होता था जब आप बाहर निकलते थे, सोशली, क्योंकि आप टीवी पे दिख रहे हो रोज? नहीं, कच्ची धूप gave me the biggest popularity. जहाँ भी जाओ वहाँ पे लोग पहचानते थे. And Nikhil sir was my character's name. So I would be known as Nikhil sir a lot. लेकिन टेलीविजन का क्या है कि जो 4 दिन की चांदनी है वो, आपका शो जब खत्म हो जाता है तो ऑडियंस मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट. एंड मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि जैसे हम कहते हैं ना, फेम एंड पॉपुलैरिटी दोनों में बहुत अंतर है, थोड़ा फर्क है. फेम तो मतलब यू कैन जस्ट बी फेमस एंड नॉट बी पॉपुलर. तो मेरे मन में हमेशा ये रहा कि आई वांट टू बिकम पॉपुलर. जस्ट फेम इज नॉट नाइस. ऐसा कुछ काम करो जिससे आप पॉपुलर हो जाओ. बी अप्रिशिएटेड टू द फुलेस्ट, नॉट जस्ट बी नोन फॉर योर वर्क. Was it tough for you to make choices back then? आप बहुत, I can't say आप choosy हो, but you're particular. ये आपके वर्क में दिखता है. तो तभी जब आप CID कर रहे थे या जो भी आपके जो टेलीविजन शोज थे कर रहे थे, तो when it came to you, were you like, अच्छा इसमें और क्या होगा? Did you, because you already learned these crafts from around you, कि you should know what you're going into, है ना? कि वो सिर्फ एक काम था, because बहुत सारे लोग बोलते हैं, oh TV is just work, you need to make money. like, हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा. मैं कहूँगा कि मुझे जो भी ऑफर हुआ वो मैंने लिया. तो ऐसे नहीं था कि मेरे पास कुछ चॉइस था बहुत सारा. फॉर्चुनेटली मुझे जो भी मिला अच्छा मिला था. Was the best. I mean, yeah, I've been very lucky. I said no, I've been very lucky. तो वो जब वो चीज़ मिलती थी तो उस पे उसका डिटेलिंग करना, उस पे फोकस करना, एंड जितना अपना पूरा जितना टैलेंट
अंदर जो है पूरा लगाना, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था. Once you became an actor, you may have not known this, पर आपका process आपके parents के वजह से चालू था, because you were watching. What you watch, you can Yeah. sort of imitate in some way. But once you became an actor, serious one, what was your process then? Did you go back watch films? क्या आप अपने आईने में जाके dialogues बोलते थे? क्या होता था? या इंटरेस्टिंग, बिकॉज मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि काश मैं एक्टिंग स्कूल गया होता, बिकॉज एक्टिंग स्कूल जाने से आपको एक फॉर्मेटिव ट्रेनिंग मिलती है, वेयर यू आर एबल टू स्टेप बाय स्टेप अप्रोच द क्राफ्ट, एंड काफ़ी सारे लोगों से सीखने को मिलता है, बिकॉज आपको ट्रेनिंग डायरेक्ट मिलती है. क्योंकि मुझे वो नहीं मिला, तो मेरा दूसरों को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी था. एंड मैं ये सिर्फ फिल्म देख के नहीं कहता हूँ, बिकॉज फिल्म देखना, उसमें बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स होते हैं. एन एक्टर कैन बी जस्ट सिटिंग ऑन कैमरा डूइंग नथिंग, और उसके चेहरे पे अगर आपने सारंगी बजा दी तो लगेगा वो दुखी है आदमी. आपने उसके अगर सितार के स्ट्रोक्स बजा दिए तो लगेगा कि ये थोड़ा सा कुछ किसी बात से खुश है. सो देयर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कम इन. Correct. So I thought the best was to go and watch plays, go and watch one act. अपने सेट पे जो अलग अलग एक्टर्स काम कर रहे हैं उनको देखना, उनके साथ ऑब्जर्व करना. जैसे नसीर साहब हैं इन होली और कभी हाँ कभी ना में, चमत्कार में, 3 फिल्में मैंने उनके साथ की हैं. तो उनको ऑब्जर्व करना, बिकॉज दैट्स द बेस्ट वे टू एटलीस्ट गेट सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. और मेरे लिए फिल्म मेकिंग का भी वही रहा कि डायरेक्शन के लिए भी मैं फिल्म स्कूल नहीं जा सका. तो जिन फिल्मों में मैंने एज एन एक्टिंग काम किया है, उन डायरेक्टर्स को मैंने ऑब्जर्व किया, उनके साथ वो कैसे एक स्टोरी को उसके बिट्स बना के कैसे उसको शूट करते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें मुझे वैसे सीखने मिली. But I think your journey is unparalleled. मतलब मुझे लगता नहीं है कोई और है इंडस्ट्री में जिन्होंने इतना तगड़ा काम एक्टर में एज एन एक्टर किया और उसके बाद फिल्म मेकिंग एंड नाउ बैक टू एक्टिंग. It's very rare combination you have there, Ashutosh. Very rare. हाँ, I've been lucky, as I say. अभी भी एक्टिंग में ऐसा है कि अगर मुझे कुछ ऐसा किरदार हो जो मुझे लगता है कि मैं इसे जस्टिस कर सकूंगा, तो वही मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ. करेक्ट. टाइम वाइज भी उसका दायरा थोड़ा सा कंट्रोल रहना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली ऑफ कोर्स पहला नशा मेरा एक्टिंग है, लेकिन दूसरा नशा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज डायरेक्टिंग. सो आई डोंट वांट टू blur those lines and get lost. Yeah. पहला नशा की बात करते हैं. When you wanted to be a director, it's so interesting. आपने ये बात कही एक इंटरव्यू में कि you wanted to say कि अच्छा हो रहा है कुछ कनेक्शन हो रहा है मेरे डायरेक्शन का और ऑडियंस का. It's such an interesting thing to say, क्योंकि you know कि you want to try something new, but will you be able to do it? Yeah. And even though the movie may have not done as well, but at some level you still took on the challenge. तो आपके अंदर क्या है वो कीड़ा चैलेंज लेने का, या डायरेक्टिंग का क्या कीड़ा था कि ये तो मैं करके रहूँगा? डायरेक्शन में मुझे इंटरेस्ट, रुचि तब पैदा हुई जब मैंने इतने सारे डायरेक्टर्स को फिल्में बनाते देखा कि कैसे कहानी को लेकर इतने सारे बड़े कास्ट एंड क्रू को साथ में लेकर एक आप कहानी पेश करते हैं. आई थॉट इट्स अ वेरी होलसम थिंग टू डू. So many dynamics. So many different dynamics. जहाँ पे डायरेक्टर नहीं जानता है कि कारपेंट्री क्या होती है, वो नहीं जानता है कि सिंगिंग, म्यूजिक और ये सब क्या होता है, लेकिन ही नीड्स एन आर्ट डायरेक्टर. वो नहीं जानता कि टेलरिंग क्या है, लेकिन ही नीड्स अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर. सो ही नीड्स ऑल ऑफ दीज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और उनके साथ वो कहानी पर्दे पर लाता. ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा, और मुझे लगा ये मुझे करना चाहिए. तो ये बात कि मुझे डायरेक्शन करना है, ये मेरे तीनों दोस्तों को पता थी, दीपक को भी, आमिर को भी और शाहरुख को भी. अच्छा. एंड उनमें एक अलग किस्म का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था मेरे लिए. अच्छा. कि आशु तो अच्छी पिक्चर बनाएगा. ओके. तो उससे पहला नशा बनी विद दीपक एज द लीड. काश वो हिट होती. Do you watch it sometimes and cringe or you feel it was flawless? मतलब होता है ना, एक खुद के क्राफ्ट के लिए you have an eye. मैं फ्लॉलेस नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा फुल ऑफ मिस्टेक्स है. और वो कैसी मिस्टेक्स हैं, वो जो इनिशियल आप एक
इनॉग्रल करते हैं ना, हाँ पहली बार, हाँ तो वो मिस्टेक्स हैं. तो मैं दीपक को तो आज भी कहता हूँ कि दीपक यार, यू पुट ऑल योर ट्रस्ट इन मी टू लॉन्च यू एज अ लीड एक्टर, एंड वो हम हिट नहीं कर पाए. बट स्टिल वो एक्सपीरियंस बहुत कमाल था. जी. तो मैं हमेशा दीपक को ये कहता हूँ कि माई मोस्ट एक्सपेंसिव डिप्लोमा फिल्म इस पहला नशा, बिकॉज उस फिल्म पे मुझे सीखने को मिला. Experiment. एंड देन ऑफ कोर्स बाजी हैपेंड. Oh my God, that was a storm. Yeah, मतलब yeah. उस मूवी, I think you made probably the first thriller in that sense, क्योंकि back then I don't think anyone had seen anything like that. Yeah, शायद but actually no, I'll correct what you're saying. It with आमिर जी. हम पहली बार देख रहे थे ये. अच्छा. बिकॉज मुझे हमेशा लगता था कि आमिर के इतने सारे रोल्स रोमांस के इतने अच्छे थे, लेकिन उसमें एक एक्शन हीरो भी कहीं पे बसा हुआ था मेरे लिए. Imagine you're so way into the future. I was thinking, yeah. And that's how Bazi came about. उनका रिएक्शन क्या था जब आपने उनको ऑफर किया? क्योंकि अगेन ही मस्ट हैव थॉट कि नहीं मुझे थोड़ा कुछ रोमांस दो, ये सब क्या है, मैं मतलब इतना अटका हुआ हूँ इस हाइस्ट में. नहीं, आमिर को भी लग रहा था तभी कि आई मस्ट अटेम्प्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टफ. तो उसमें एक्शन हीरो दैट टाइम वाज अ वेरी एक्साइटिंग जॉनर टू बी इन. और वो कहानी ऐसी थी जो उसमें अमरदाम जी नाम का एक पुलिस ऑफिसर है जो सच्चा है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है फिल्म में. तो वो किरदार उसको बहुत अच्छा लगा, एंड दैट्स हाउ बाजी केम अबाउट. There is something about cops and you for sure. There is some दूसरे जन्म का कनेक्शन, क्योंकि CID में भी अभी भी आपके जो 2 सीरीज में इतने ज्यादा लोग प्यार में हैं. It's unbelievable how you've managed to keep that universe alive for yourself. क्या है? एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड ही वो है कि मेरे पिताजी पुलिस ऑफिसर थे. सो आई हैव सीन द लाइफ ऑफ अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम अप क्लोज. पिताजी का घर पे लेट आना आउट ऑफ आफ्टर डूइंग द ड्यूटी, और द वे अ पुलिस ऑफिसर और द एंटायर पुलिस फोर्स वो किस तरह से अपनी निजी जिंदगी को दाव पे लगा देते हैं. दे सैक्रिफाइस इट फॉर द अपकीप ऑफ द सिटी और फॉर अपकीप ऑफ सोसाइटी. तो मुझे काफ़ी इनहेरेंटली मुझे देखने को मिला. तो समवेयर व्हेन आई वाज डूइंग CID I could emulate that. अभी रिसेंटली मानवत मर्डर्स में व्हेन आई एम प्लेइंग इंस्पेक्टर DCP रमाकांत कुलकर्णी, वो मैं वापस उसको रिक्रिएट कर पाया. तो हाँ, तो आई हैव मैंने कमेंट्स देखे हैं, and you can't get जनता to lie. They are in love with your acting. Yeah, thank you. Was there a specific thing that you approached this character with? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा, I think also the story is quite is interesting. It's real. Like yes, fascinating है. DCP रमाकांत कुलकर्णी जी ये 70s and 80s के बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर रहे हैं. उनको शेरलॉक होम्स ऑफ इंडिया ये खिताब तभी मिला था, बिकॉज जो भी केस वो लेते थे वो सॉल्व कर देते थे. तो उन्होंने रामन राघव का केस सॉल्व किया, ये मानवत मर्डर्स, इंदिरा गांधी असैसिनेशन केस उन्होंने सॉल्व किया, फिरोज दारोगा, बहुत सारे. बट खासियत उनकी ये है कि एज अ पुलिस ऑफिसर ही वॉज अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन मैन. उन्होंने कभी भी किसी भी अपने इंटरोगेशन में कभी भी 3rd डिग्री एम्प्लॉय नहीं किया. मतलब हर क्रिमिनल के साथ वो बड़े प्यार से पेश आते थे, चाय खाना सब देते थे. एंड द क्रिमिनल्स उनके सामने सब कुछ बोल देते थे. सो दैट वाज द क्वालिटी ही हैड. अच्छाई और सच्चाई की जीत. सो आई फाउंड दैट फैसिनेटिंग. तो इस कैरेक्टर में वो क्रिएट करने के लिए बहुत मजा आया मानवत मर्डर. That is one word I think that goes with you ever since I've known you. It's regal. There's something very regal about you, and it's interesting कि आपने जो बनाया भी है. You know something? I feel the same about you. Really? आप भी बहुत रीगल हमेशा मुझे लगी हैं. I find it very interesting how you managed to keep that alive, because जब आप एक्टिंग करते हो आपको कितने किरदार करने पड़ते हैं. एज अ डायरेक्टर यू हैव टू बी टफ बिकॉज यू हैव सो मेनी ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स अंडर यू, एंड यू हैव येट मेंटेन दैट सॉफ्टनेस. तो when you started directing, did Ashutosh meet another side of himself because I'm doing too many things at one time? ऐसे हुआ था? नहीं बिकॉज मैं प्रिपरेशन में बहुत बिलीव करता हूँ. हर चीज़ को अगर आप करेक्टली प्रिपेयर कर देंगे तो फिर आपको वो दिक्कतें नहीं आएंगी सेट पे कभी भी. तो वो प्रिपरेशन क्या है?
स्क्रिप्ट है तो उस पर पूरा स्क्रिप्ट प्रिपरेशन कर लो, Yeah. म्यूजिक है तो गानों की आपको जो सिचुएशंस लिखनी हो डिटेल में लिख लो, आर्ट है तो डिस्कस विद द आर्ट डिपार्टमेंट एग्जैक्टली आपको सेट एवरीथिंग इफ यू हैंडल इंडिपेंडेंटली Yeah. then it becomes more stress free while shooting. Were there directors who you watched, whose movies you watched, and you got inspired and you said, I'm going to try and adapt this? कि आपका खुद का एक प्रोसेस था? नहीं, आई थिंक खुद का प्रोसेस तो प्लान करके नहीं होता है. Yeah. खुद का प्रोसेस आई थिंक आप बनाते सालों बाद बनते जाता है. आई थिंक मुझे नहीं पता मुझे मेरा बना है कि नहीं बना है, लेकिन मेरे इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं. Okay. इंडियन सिनेमा के बहुत सारे हैं, इंटरनेशनल भी बहुत सारे हैं. एंड वो इन्फ्लुएंसेस कैसे हैं, वो उनको हमें एम्यूलेट नहीं करना है. अभी जैसे अभी राजकुमार संतोषी जी हैं, ही मेड घायल विच इज आउटस्टैंडिंग. Yeah. आई लव दैट एंड आई लव हिज वर्क. Yeah. लेकिन उनको मैं एम्यूलेट नहीं Correct. इंटेंशनली कभी करूंगा या कर पाऊंगा. You just feel inspired. You just feel a stroke of wow. हाँ कि इसने कि इन्होंने बहुत अच्छा काम जी. किया. तो वैसे यू लुक एट डेविड लीन एंड यू आर सो इंस्पायर्ड बाय लॉरेंस ऑफ अरेबिया एंड रायन्स डॉटर एंड ऑल ऑफ दैट. जी. एम्यूलेशन उसका नहीं हो सकता. इट्स खाली ये प्रभाव रहते हैं, एंड समवेयर आई थिंक इन योर कॉन्शियसनेस probably they remain and something gets created, and it depends on what kind of story you're telling. It's very interesting that you started in a big way with Lagan. I had the great opportunity 3 years ago कि मैं कच्छ गई and वहाँ के लोगों ने कहा हाँ हमारा पूरा गांव बस गया है यहाँ पे उनके वजह से. I don't know how proud that makes you, your family and the entire nation feel कि एक फिल्म ने एक बस्ती बसाई है, मतलब एक जगह बना दी है. I don't know how much to thank you, so I'm going to start ulta for you. But does that make you feel happy कि हम लोग all of us feel कि कुछ तो contribute करना है society के लिए, कुछ तो करना है. But the work that manages to uplift along with the work that you do, Yeah. they say is the ideal work. बिल्कुल. और आपकी पहली ही film in that sense, and that's grandeur that you did. Yeah. Did that? Yeah. कैसे हुआ ये? Please take us there. अभी एक्चुअली मैं क्रेडिट नहीं लूँगा इसका पूरा. ये शेयर्ड क्रेडिट है, आमिर और मेरा है. क्योंकि हम लोग जब वहाँ पे गए भुज में और हमने ये तय किया कि हमें वहाँ पे शूटिंग करनी है, हाँ. तो ऑब्वियसली उस एरिया को, उस रीजन को हमें थोड़ा सा बसाना पड़ा तभी. हाँ. बिकॉज वहाँ पे कुछ नहीं था. जब एक्चुअली हमें फिर I think the गाँव, hotel you all lived in also something you made. हाँ हमने उसको क्रिएट किया था. वो रीना की आइडिया थी, रीना और राव साहब की, जिन्होंने जो प्रोडक्शन हैंडल कर रहे थे, कि अगर होटल नहीं मिल रहा तो क्यों ना एक बिल्डिंग को हम लें और उसमें हर कमरे को हम, अगर हमारा सब जो टेक्निकल है चीज़ें वो दे, जैसे एसी है और बेड्स हैं, तो वी कैन क्रिएट आवर ओन होटल वेयर एवरीबडी कैन स्टे. सो आई थॉट दैट वाज इंजीनियस. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई. और समवेयर भुज के जो लोग हैं जिन्होंने कभी एक्चुअली कुनेरिया जो एक गांव था वहाँ पे, वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने कभी सिनेमा नहीं देखा था, कभी फिल्में नहीं देखी थी, वो सडनली सिनेमा लिटरेट हो गया. मैंने बहुत साल बाद जब मोहनजोदारो में शूट करने गया कच्छ में, तो जो बच्चे लगान में थे वो बड़े हो गए थे एंड दे एक्टेड इन मोहनजोदारो. So it was quite a. Do you remember them? I mean, Yeah. I remember all of them. So they are all there in Mohenjo-daro. Similar locations are there because I wanted that never so seen much before respect location. In this moment for you. This is so beautiful. So beautiful. Yeah. Did you see Oscars? And right now, because Oscars are the biggest talk, before I come to AGPBL, the biggest talk right now is Oscars. Fir se we are there. Amir is there with his product. I don't know if have you watched Lapata Ladies? Have you had Of course. Loved it. Yeah. Absolutely stunning film. How does that process work? You were there first in that sense of it because back then बहुत सालों से कुछ गया नहीं था हमारे यहाँ से. Was it a very tough thing how to approach them? And do you feel कि जब हम लोग एक फिल्म बनाते हैं which is not about opulence, कहीं ना कहीं इंडिया के वो so called the not so rich and the famous के बारे में बताते हैं, when you go into the brass tracks, that's when we get noticed. तो ये भी एक बहुत complaint रहती है हमारी कि एक Slumdog Millionaire भी जब गई थी, it was about slums, in that sense of it. But do you feel Lagan had a different approach? Lagan had a different reception? What was that Oscar का experience बताइए? एक तो
एज इंडियाज एंट्री जब लगान वहाँ पे गई थी तभी कोई भी हमें नहीं जानता था. और जाहिर है क्यों जाने, इंटरनेशनल अरीना में हमने कुछ किया नहीं है, तो वी वर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग इट. लेकिन हमारा एक सोल पर्पस था तभी कि हमको ये अवेयरनेस क्रिएट करना है कि हम इंडिया से हैं और हमारी एक फिल्म हम लेके आए हैं जो खास है. उसको सिर्फ आप देखने आइए प्लीज. करेक्ट. एग्जिबिट चाहिए. हमें अवार्ड नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आके फिल्म देखिए हमारी. एक अद्भुत अलग किस्म की फिल्म है हमें लगता है. एक स्पोर्ट्स ड्रामा भी है, एक ब्रिटिश राज की भी फिल्म है, म्यूजिकल भी है. तो अजीब कॉम्बिनेशन की फिल्म है. जस्ट कम एंड सी इट प्लीज वाज आवर ओनली रिक्वेस्ट एट दैट टाइम. एंड उस सोल पर्पस के साथ जब हमने लोगों को दिखाई, तो आई थिंक अकेडमी मेंबर्स व्हेन दे केम एंड सॉ द फिल्म, दैट्स व्हाई दे गिव अस द थम्स अप फॉर द नॉमिनेशन. तो हमारे पास उतना पैसा भी नहीं था कि हम वहाँ के मैगजीन्स में कुछ फुल पेजेस खोलें, बड़ी बड़ी पार्टीज थ्रो करें, डू अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज. ये सब हम नहीं कर पाए थे तभी. हमने जितनी कोशिशें की वो इस किस्म की थी. एंड अल्टीमेटली आप कुछ भी कर लें, कितनी भी बैकिंग आप कर लें, द फिल्म स्पीक्स. अगर फिल्म आपकी स्पीक नहीं करेगी तो आपको अगर आपको डिजर्वेडली नहीं मिला है तो उसमें भी मजा नहीं है. When you win a nomination, when you win an award, it should be unanimously felt by everyone. Oh, yes. There should be happiness all the way around. Over the years, I think it has now become थोड़ा सा एक हमारी जो प्रेजेंस है वो थोड़ी अब बढ़ती गई है. बिल्कुल. तो I think from then to now, it's also about globalization, the internet, a lot of things have played a role in it. But तब आपके पास वो सारे शस्त्र नहीं थे, फिर भी you made us look so good. तो क्या मेमोरीज है तब की, उनकी क्या रिएक्शन थी जब हम वहाँ गए थे? क्योंकि आई रिमेंबर पीसी टेलिंग मी वंस, अर्चना, आई जस्ट वांट पीपल टू नो कि हम इंडियंस अच्छा इंग्लिश बोले थे. तो ये क्या बात है? बट इट्स ट्रू, देयर परसेप्शन ऑफ अस बहुत अलग है. तो तब वो लोग क्या रिएक्ट करते थे? एंड पोस्ट विनिंग इट क्या हुआ? कुछ ऐसे, मतलब डिड यू सी अ सी ऑफ चेंज कुछ? नहीं, ऐसे सी ऑफ चेंज नहीं, बिकॉज इट्स वेरी लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर फिल्म. वो जो उनका जो एक प्यार है या उनका जो एक अप्रिसिएशन है, वाहवाही है, वो सिर्फ उस फिल्म के लिए होती है. वो उस देश के लिए नहीं होती है. सही बात. बिकॉज देश तो आई मीन दे नो इंडिया एज अ कंट्री. बट हाईलाइट में तो आ ही जाते हैं, फॉर दैट वी कैन क्रिएट समथिंग लाइक दिस. या सो आई थिंक द रिसेप्शन फॉर द फिल्म, जब उन्होंने फिल्म एक्चुअली देखी, एक जो आमिर और मेरे माइंड में हमेशा ये था कि बेसबॉल के प्यार में है ये देश. करेक्ट. अमेरिका. ये क्रिकेट कैसे देखेगा? लेकिन एकेडमी में भी स्टेडियम हो जाता था इन द क्लाइमैक्स, वेयर they would watch and they would respond like, I'm watching the film in Getty. Really? So it was a amazing. So basically, it was people rooting for the underdog. सबको ये मन में था कि ये भुवन को जीतना चाहिए, भुवन को और ये चंपानेर वासियों को जीतना चाहिए. तो वो कमाल मोमेंट था. एंड वही मोमेंट हमें लोकार्नो में भी देखा. हमें हर शहर जहाँ पे भी हम गए वहाँ पे वो कॉमन रिस्पॉन्स था. There is always a feeling of the nation winning when you're winning internationally. I'm sure Oscars के बाद की कहानियाँ बहुत ज़्यादा लोगों ने शेयर की होंगी, but there might be something we didn't get to hear because that back then social media या journalists were not in your face. Was there a certain interaction post the movie or winning there जो आपको अभी भी याद आता है, जो शायद लोगों को नहीं पता हो? Maybe I would thinking, I have a feeling अमेरिका की क्रिकेट टीम बनी होगी इस movie के बाद. क्योंकि है भी अमेरिका की क्रिकेट टीम. नहीं, हमें we were too stunned at that time. जब नॉमिनेशन अनाउंस हुआ तो हम लोग यहाँ पे थे. तो हम सब एक साथ कलेक्ट हो गए थे आमिर के घर पे, एंटायर कास्ट एंड क्रू, कि आज अनाउंस होगा. एंड मैं आज भी नहीं भूला हूँ कि जब वो अनाउंसमेंट शुरू हुआ, जॉन ट्रेवोल्टा ने जब कहना शुरू किया, तो 2 फिल्मों के नाम हुए और फिर तीसरा लगान था. एंड आफ्टर ही सेड लगान, इतनी चिल्लम चिल्ली थी आमिर के घर पे, बिकॉज वी वर, इट इज अनबिलीवेबल दैट द नेम ऑफ लगान हैज बीन टेकन एंड वी हैव गॉट अ नॉमिनेशन.
So that was a amazing moment. और उसके बाद हमारा नया स्पेल शुरू हुआ where now this time when we both went to LA कि नॉमिनेशन मिल गया है, Yeah. तो थोड़ी सी हमको एक सहूलियत मिल गई. Yeah. सबको पता था कि वे नॉमिनेटेड हैं. हाँ. लेकिन फिर भी हमारा मकसद वही रहा कि लोगों को फिल्म दिखाओ जितने लोग और देख सकते हैं. Correct. यू नो, बिकॉज 2-3 एक नोशंस होते हैं ना कि फिल्म में गाने हैं, म्यूजिकल फिल्म को थोड़ी अवार्ड दे सकते हैं, Correct. या इसमें ड्रामा, स्पोर्ट्स ड्रामा है, स्पोर्ट्स की पिक्चर है, इट्स नॉट अ सीरियस सिनेमा. इस तरह का एक तभी एक माहौल था. तो वो सबको हम एक ही जगह एक ही तरह से हम उसको ये कर सकते थे कि आप जो भी है देखो. फिल्म देखो पहले. There is no luck in this. A lot of hard work. A lot of hard work. Okay, now I'm going to come to obviously AGPPL. What was the एक प्रोडक्शन हाउस खोलने के लिए क्या चाहिए होता था? Now I'm asking for people who want to have a production house, probably watching this. Do you want to tell us quickly कि क्या है वो जो AGPPL के दौरान जब आपने शुरुआत करी थी? What were the things that were going into it? And today, as we celebrate 20 years, what is it that you look back before it even came into being? No, I would say एक तो मुझे कंट्रोल चाहिए था ऑन द काइंड ऑफ फिल्म दैट आई वांट टू मेक. Yeah. जो कंट्रोल जो फ्रीडम एक्चुअली मुझे आमिर ने दिया लगान पे, Yeah. वही फ्रीडम मुझे वापस चाहिए था. Yeah. एंड उस चीज़ को मन में रखते हुए Yeah. आशुतोष गोवारकर प्रोडक्शंस एज अ कंपनी वाज लॉन्च्ड. लेकिन ये था जस्ट टू एड फिल्म्स दैट आई एम मेकिंग. तो इतने सालों से जब भी हमने फिल्में की हैं तो दे आर ऑल माय फिल्म्स एज अ डायरेक्टर Yeah. एंड अ राइटर. एंड इस जर्नी में द प्रोडक्शन का जो पूरा भार है वो सुनीता ने उठाया. Wow. तो बिकॉज शी कुड डू इट, Yeah. I could actually make the movies the way I wanted to make them. And pandemic के टाइम हमने एक फिल्म की थी तुलसीदास जूनियर, Yeah. जो हमारी पहली फिल्म थी, which is not directed by me. मृदुल was the director for it. Yes. जिसे हमें नेशनल अवार्ड मिला, 2 नेशनल अवार्ड मिले एक्चुअली फॉर दैट फिल्म. But it didn't come on the big screen. It came straight to OTT, is it? नहीं, बिग स्क्रीन, हाँ तभी बिग स्क्रीन था नहीं इतना बिकॉज ऑफ पैंडेमिक. Pandemic. इट वाज दैट टाइम, Yeah. सो इट केम टू OTT. Yeah. लेकिन तो अब इस नए दौर में आफ्टर 20 इयर्स नाउ हम बहुत सारी और चीज़ें भी करना चाह रहे हैं. Yeah. हमको वेब सीरीज भी, सो एज अ कंपनी वी विल आल्सो नाउ डैबल इनटू वेब सीरीज. वी विल डू टेलीविजन सीरियल्स, Wow. वी वांट टू डू डॉक्यूमेंट्रीज, वी वांट टू डू ऑडियो बुक्स, So beautiful. मराठी फिल्म्स. सो दैट्स द नेक्स्ट प्लान नाउ. Was it true कि संजू बाबा was slightly upset कि ये आपने सीधा OTT पे क्यों दे दी? मेरी फिल्म इतनी अच्छी है, बड़े पर्दे पे तो लाते. हाँ यार, ये बात. बट वो क्या था कि वो वक्त ही ऐसा था कि हमारे हाथ में नहीं था. द ऑडियंस देमसेल्व्स हैड मेड अ बाइफिकेशन कि हम क्या थिएटर में देखेंगे Yeah. और हम क्या घर में देखेंगे. तो उस जो आज भी एप्लीकेबल है. Yeah. आज भी कितनी सारी फिल्में आप बनाते हैं Yeah. जो डायरेक्ट OTT पे जाती हैं. Yeah. एंड थैंकफुली एक ऐसा अब हो गया कि अब आप पहले से प्लान करके जा सकते हो Yeah. कि you plan it first that you want to make an OTT film. That is You- the new thing that is happening. For you as an audience, I'm sure you love watching movies. Yeah. क्या आप झिझकते हो सिनेमा हॉल में जाने से? And I'm sure as a director you'll say no because obviously you want people to go to cinema halls. We all love cinema halls. But just as an experience of watching OTT at home and going to the cinema hall for Ashutosh sir, maybe as a viewer right now, I would like your honest answer. नहीं, I will go see every film in a theater Okay. because theater का experience अलग experience है. Collective viewing का experience है वो. लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि वेब सीरीज को हाँ. या OTT डायरेक्ट जो क्रिएटेड फॉर OTT फिल्में हैं, तो आई विल गो अकॉर्डिंग टू दैट. आई विल सी अ क्रिएटेड फॉर OTT फिल्म एट होम. Correct. But you will want to do justice and कि आप पिक्चर अगर बनी है बड़े पर्दे के लिए तो मैं बड़े पर्दे पे ही देखूं. बिल्कुल, बिकॉज वो फिल्म मेकर ने वो उसकी चाह है वो. Yeah. So you have to respect what the filmmaker is trying to do.
पर ये जो एक चलन है वे पीपल आर सेइंग व्हाट्स हैपनिंग विद आवर मूवीज, क्या हमको साउथ के फॉर्मूला अप्लाई करने हो रहे, यू नो देयर टू मेनी थॉट्स एंड टू मेनी थिंग्स बीइंग फोर्स्ड अपॉन बॉलीवुड. और मुझे लगता है अगर हम लोग अपने आप में सक्षम नहीं होते तो इतने साल हम लोग इतने अच्छी फिल्में नहीं बनाते. तो सडनली ये क्यों हम लोग पे आरोप आ रहा है, लर्न समथिंग फ्रॉम तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, लर्न समथिंग फ्रॉम मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, मतलब ऐसे. हाँ, नहीं, आई थिंक वो दौर है. कभी ना कभी एक ऐसा समय हमेशा आता है कि यू नो अभी जैसे अगर आप रीजनल सिनेमा देखेंगे तो रीजनल सिनेमा मलयालम हमेशा अच्छा ही रहा है. स्पेशली स्टोरी. वो अब पैंडेमिक में हमने बहुत सारा मलयालम सिनेमा देखा है तो लोगों को लग रहा है कि यार मलयालम सिनेमा कमाल, बट मलयालम सिनेमा हैज ऑलवेज बीन डूइंग ग्रेट स्टफ. I would say Bengali cinema has always been doing great stuff, but now we are also seeing it on OTT. तो वो एक दौर होता है एंड वेव होती है. फॉर एवरी बिग तेलुगु फिल्म दैट वी सी जो बहुत बड़ा सक्सेस है, या एवरी बिग तमिल फिल्म दैट वी सी जिसका बहुत बड़ा सक्सेस है, उसके साथ उनकी और भी 4-5 फिल्में जो नहीं सक्सेस हैं. तो यू कैन नॉट कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट, एंड इट इज जब कंपटीशन आती है, जब चैलेंजेस आते हैं तो अच्छा काम होता है डेफिनेटली. तो आई एम क्वाइट पॉजिटिव अबाउट, यू नो, अगर लोग हमें, इट्स लाइक दिस, अभी जाना माना क्रिकेटर है जो बहुत बड़ा क्रिकेटर है लेकिन वो पहली ओवर में आउट हो जाता है. तो हम कभी उसको जब वो आउट हो जाता है तो हम ये नहीं सोचते कि बेचारा नहीं आज, नहीं, हम तो गाली देते हैं उसको कि क्या ऐसे कैसे खेल लिया उसने. तो दैट्स आवर नेचर. समथिंग डजंट वर्क, वी टेंड टू थिंक अरे यार ये क्या हो गया सिनेमा को. बट कुछ चल जाता है तो उसकी उतनी तारीफें नहीं होती जितनी होनी चाहिए. एक वेव था कि इंडियंस बाहर जा रहे थे एंड देन यू मेक अ स्वदेश. आपके क्या कोई गांव के एक्सपीरियंसेस, आप बार बार हमको गांव लेके जाते हो और एक हिट फिल्म बनाते हो. AGPPL's फर्स्ट फिल्म was a hit not just because it was wow as an experience, one of Shahrukh's finest very toned down normal person performance जो आपने बहुत ही आपके ही टोन में रखते हुए उनको उनसे परफॉर्मेंस ली, एंड साथ में यू मेड इंडियंस कम बैक. व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक. दैट वाज योर शतक एंड बियॉन्ड. नहीं, आई रियली अप्रिशिएट ओवर द इयर्स जितने लोग, स्पेशली जितने ओवरसीज ऑडियंसेस सॉ द फिल्म एंड रिएक्टेड टू इट इन अ वेरी डिफरेंट वे एंड अ वेरी इमोशनल वे. और यू नो आई कीप गेटिंग मेल्स एंड टेक्स्ट ऑफ पीपल जो वापस आए हैं. रहमान कीप्स गेटिंग टेक्स्ट एंड मेल्स कि जो लोग वापस आए हैं. लेकिन फिल्म का मुद्दा वापस आने के लिए नहीं था. ओह, I was not making a anti-brain drain film. The film is about कि आपको अगर परदेश में मौका मिलता है तो आप वो कीजिए. बहुत ज़रूरी है. लेकिन कभी ना कभी आप अपने देश के बारे में भी सोचिए. आप अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें तो कीजिए. और देश में भी जो अपने देशवासी हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि इफ अगर आप गांव से शहर में आ गए हैं तो आप शहर में आने के बाद आप सोचिए कि गांव को आपको क्या कंट्रीब्यूट करना है. सो इट्स नॉट अबाउट लीव द फॉरेन लैंड एंड कम बैक, और यू नो लीव द सिटी एंड कम बैक टू द विलेज. दैट्स नॉट द मैसेज ऑफ द फिल्म. बट आई एम ग्लैड कि सो मेनी पीपल रिएक्टेड डिफरेंटली एंड you know Swades mein the beauty of Swades is also again like it made us look at our unfortunately I'm Sindhi तो मेरा कोई गाँव नहीं है, it's sad, but did you have memories of going back to your hometown? Because हमारे यहाँ महाराष्ट्र में there's such beautiful village sides and you know like country sides. Did you have memories बचपन में आपके? बिल्कुल थे, बिकॉज माई होम टाउन इज कोल्हापुर. जी. और मैं बचपन से हर साल मई की छुट्टियाँ, समटाइम्स दिसंबर की छुट्टियाँ कोल्हापुर में मैंने बिताई हैं. तो मेरा कनेक्शन गांव के साथ बहुत गहरा है. ओवर द इयर्स कितनी सारी चीज़ें जो मैंने देखी हैं, लाइक मैं आपको अगर छोटा सा एग्जांपल दूं तो जो गोफन घुमाना होता है, जो किसान को गोफन घुमाता है अपने खेत में पक्षियों को दूर रखने के लिए, वो गोफन मेरे दिमाग में बचपन से था. तो उसका यूज़ हुआ लगान में जब गोली यूज़ करता है. तो मेरे वो जो ऑब्जर्वेशंस हैं गाँव के, वो हमेशा मेरी फिल्मों में किसी ना किसी रूप में आए हैं. और आज भी मैं कोल्हापुर से बहुत कनेक्टेड हूँ,
बहुत सारे दोस्त मेरे वहाँ पे हैं, फैमिली कनेक्शंस हैं. जब भी मुझे समय मिलता है मैं वापस विजिट करता हूँ. Are there typical words जो कोल्हापुर में यूज होते हैं जो आपको याद आते हैं? Because typically वो एक कुछ शब्द होते हैं वो डायलेक्ट होते होते कम हो जाते हैं. हाँ हाँ. तो सबसे मेरा फेवरेट जो एक वर्ड है जो कोल्हापुर में यूज होता है, लय भारी. Of course, कि तो फिल्म भी बन गई. हाँ, तो लगान हो या कुछ भी हो, मेरी अगर कोई भी फिल्म वहाँ पे जब मैं स्क्रीन करता हूँ देखते हैं तो पहला ही होता है कि लय भारी है. I'm going to take you through your films and ask you for one memory that stands out. Okay, so we're going to do this in a quick succession. Of course, so now the recent ones, no, that I'll ask you later. Bazi. Bazi, I would say my first thriller. तो कोई एक तो memory है? एक मेमोरी उसकी मेरी ये है कि दी एक्शन सीक्वेंसेस, मतलब जितने एक्शन सीक्वेंसेस उस फिल्म में हैं आर वेरी बहुत नए नए उसके विचार थे. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं क्विक, ये रैपिड फायर नहीं हो सकता है. No, that's fine. You can tell me. कि अमर दाम जी को मुझे ये दिखाना था कि बहुत पावरफुल है हाँ, एंड ये आमिर प्ले कर रहा है. हाँ. तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि अगर आमिर किसी एक क्रिमिनल को अगर वो जूडो से पटकता है तो हमको एक शॉट में दिखना चाहिए. वी मस्ट एक्चुअली सी आमिर लिफ्ट अप अ गाय एंड थ्रो हिम डाउन, बिकॉज ओनली दैट विल कन्वे टू द ऑडियंस कि अरे आमिर एक्शन हीरो है, बहुत अच्छा है, मतलब खुद उसने किया हो. तो इस तरह के अप्रोचेस बहुत थे. तो आमिर डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑन दैट physically I would say, In his to physicality. play the action part. Okay, Swades. So this, of course, The gaon where you were shooting, what was the most memorable thing that always stands out for you in this one? of course, Charanpur. चरणपुर गांव, चरणपुर के वो लोग, मैं सिर्फ गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वाई की बात कर रहा हूँ, बिकॉज वाई में हमने चरणपुर क्रिएट किया था. तो वो जो सादगी है वाई के लोगों की, एंड वो ऐसी इनविजिबल बात है ना जो फिल्म में क्वालिटी दे देती है. अगर आप ये तारा वो तारा गाने में देखेंगे तो पूरा वो जो लोग हैं वो सब वाई के लोग हैं. मेढ़ोली करके एक छोटा सा गांव था, वहाँ के सारे लोग हैं. तो डेफिनेटली आई वुड से द एक्सपीरियंस ऑफ शूटिंग विद ऑल द पीपल. So beautiful. जोधा अकबर. जोधा अकबर तो जितनी ब्यूटी लोगों को लगती है फिल्म देखकर, मैं उसका बहुत बड़ा क्रेडिट ऋतिक और ऐश्वर्या को देता हूँ. Oh. अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक एंड सब कुछ, Yeah, बाकी yeah, सब चीज़ें तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन ऋतिक और ऐश्वर्या उन्होंने जो ब्यूटी फिल्म को दी है, दे मेड इट वॉचेबल. उनकी वजह से मेरा जो थीम था रिलीजियस टॉलरेंस का, Yeah. वो कन्वे हो गया. सो आई थिंक ऋतिक एंड ऐश्वर्या. Oh. लगान. प्रोडक्शन वाइज इट्स अ बिग ट्रायम्फ, बिकॉज इतनी मुश्किल थी वो फिल्म करना. Oh. और एज अ फर्स्ट प्रोडक्शन हाउस आमिर हैज बीन एन एक्टर Yeah. एंड हिज फादर इज ऑल्सो अ प्रोड्यूसर. लेकिन खुद एक बार करना जिसमें रीना, राव साहब, सत्यजीत भटकल, ये सब तभी लोकेशंस पे थे. और आई नो हाउ दे हैव रियली ब्रॉट एवरीथिंग टुगेदर राइट अप टू द 10,000 का जो क्राउड हमको चाहिए था क्लाइमैक्स के लिए. सो आई वुड से लगान मेरी मेमोरी में द प्रोडक्शन इज वेरी बिग. I've mixed television here as well. So Chamatkar. Well, of course, this is a movie, but I'm going to come to TV as well. I'm just warning you. Forewarning you. चमत्कार का कोई. चमत्कार द क्लाइमैक्स आई वुड से. मतलब जितना सीरियस लगान का क्लाइमैक्स है उतना ही फनी चमत्कार का क्लाइमैक्स है. Madness. Which is cricket again, if you Yeah, remember. actually, I remember. Okay, Gunj. गूंज मेरी सबसे बड़ी मेमोरी है उस फिल्म की ऑफ जलाल आगा. Oh. जलाल आगा साहब was a really good filmmaker. He had गूंज बनाने से पहले उन्होंने निर्वाण नाम की फिल्म बनाई थी Okay. जो रिलीज नहीं हुई. Okay. जो फिल्म मैंने देखी है और जो कमाल फिल्म थी निर्वाण. Wow. नसीर साहब थे उसमें, सारिका जी थी, अमोल पालेकर जी थे. Oh. But his sense of humor that I very fondly remember even today. I see yours in every movie. That's so beautiful about you. Okay, so sense of humor. Yeah. Nice. Naam. I'm sorry. I'm sorry. I was not aware. I loved this movie. I was growing up on this movie as I was living abroad.
Yeah. नाम? हाँ. So Naam had just 2 scenes. जी. और नाम मुझे परेश रावल के थ्रू मिली. अरे वाह. Because Paresh was already launched in that film. अच्छा. Paresh called me up one fine morning and said, तो अभी क्या कर रहा है? फ्री है? हाँ. सलीम साहब को जाके मिल. हाँ. एक कैरेक्टर है वहाँ पे प्ले करना है, 2 सीन्स का रोल है. हाँ. ऐसे मैं जा रहा हूँ. हाँ. So I went to meet Salim साहब. Salim Khan साहब. Yes, of course. And Salim Khan साहब saw me and said, you're apt. And he told me the 2 scenes. जी. And then उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें खाली थोड़ा सा मराठी हमको डालना पड़ेगा. तो क्या क्या मराठी हो सकता है? आप लिखो. हाँ. So then we sat. I wrote some Marathi phrases which he okayed. हाँ. लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं सलीम खान साहब के साथ सामने बैठ के और That फिर was a writing debut. not right. And then I met Rajendra Kumar ji. Oh. Then I met Bhatt साहब. And मतलब वो मेरे लिए नाम was the in a way my commercial debut. Wow. Wow. What a feeling. Yeah, Did yeah. you Sanjay Dutt के साथ थे? I'm going to actually Sanjay, go back yeah. and watch this movie now. With Kumar Gaurav, Sanjay Dutt. Yeah. Did it intimidate you to be in face with a person who's known for his size and his muscle and his... No, it was Keenan. actually great fun. It was Huh? great fun. He's quite warm. Yeah, he was warm and he was also, trying to make do because Naam was his comeback. Yeah, right. Naam was even Kumar's comeback. अरे हाँ, right. तो हम सब बहुत earnest थे तभी. अरे वाह. Actually वो दिन है संजय दत्त के साथ and फिर संजय के साथ I did now तुलसीदास जूनियर और पानीपत. You've always come a full circle with people. I feel. So beautiful. CID. Oh my God, I love this. CID, I want to know. CID was great experience of BP Singh ji and Shivaji Satam and Daya and everyone. और क्या legacy है वो आशुतोष जी. What a Yeah, legacy. yeah. It's alive today and as impactful. Yeah, है ना? yeah. But मेरे लिए मुश्किल उसमें क्या था? हाँ. The dialogues. Oh. टेक्निकल डायलॉग्स इतने थे कि आपको वो सब याद रख के Oh, yeah. Like करना पड़ता scientific है. terms. हाँ, ये वो. yeah. तो enjoyed doing that. So you were Sherlock in yeah. circus. Circus was a मतलब brilliant experience. Yeah. Brilliant experience. That one memory एक तो that circus. stands I think trapeze artist. मैं trapeze artist था उसमें. Oh my. What? हाँ. But you और obviously मुझे were you not doing it? नहीं तो मुझे एक सीन में ऊपर चढ़ना पड़ा था. और फिर हंसते खेलते अजीज साहब ने अजीज मिर्जा जी ने कहा कि ओके नाउ उसको पकड़ के कैन यू डू दैट. I said no way am I going to do sad that. लगते हैं भाई ऐसे कैसे? But You did it? no, I didn't. I couldn't. हाँ. It's too risky. I like to ask, but हाँ. just become a monkey for a second, like really. Wow. My personal favorite, I'm a lovely Zodiac Kida. What's your Rashi? I love the movie. By the way, I love the songs. Yeah. I Thank know you. each and every song. Yeah. You can test me. It's a great album. Yeah. Again, No, I like Javed the- Saab and अपना Sohail Suhail. did very well. Oh. But my memory of this is straight away Priyanka. Priyanka ने how? इतने सारे अलग-अलग किरदारों को निभाया जिसमें prosthetics का कोई हेल्प नहीं है. Yeah. She had to look different. हर कैरेक्टर में अलग करना था by way of performance and wardrobe. So I think that is my very strongest memory of What's Your Rashi. And one extra question here, since I'm a Zodiac lover, was it your obsession with Zodiacs? कि just the book itself enamored you? Which part of this is a bigger inspiration? नहीं इंस्पिरेशन नहीं एक्चुअली ये नाटक था अच्छा. जो नौशिल मेहता जी ने किया था. अच्छा. एंड मधुराय जी का एक ये नॉवल है, हाँ, किताब हाँ, है. किताब है. तो आई हैड सीन द प्ले एंड आई लव्ड द प्ले अच्छा. एंड आई थॉट कि ये इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है एंड विमेन एम्पावरमेंट उसमें बहुत है. हाँ, right. हर किरदार के थ्रू हम विमेन एम्पावरमेंट देख रहे हैं. तो आई फाउंड इट फैसिनेटिंग. You're an Aquarian. या What do you feel is an Aquarian trait जो आपको लगता है कि Aquarian को define करता है? I think Aquarians are believers of live and let live. I agree. Mohenjo-daro. I also want to ask if there's a Sindhi connect there because I'm Sindhi and I know Mohenjo-daro in Sindhi means Mohenjo Ghar, Mohenjo-daro. Yeah. So I want to know these two things, the memory and what is the Sindhi connect of that? Yeah. Well, memory of Mohenjo is the Oh my God, that's climax scene. yes. The actual boat crossing when the floods are coming in.
that was the toughest sequence I have ever shot. It was quite gripping for us as an audience. हाँ, बहुत मुश्किल सीक्वेंस था वो शूट करने में. और हमें वाटर टैंक बिल्ड करना पड़ा था उसके लिए भुज में. तो काफ़ी चैलेंजिंग था वो. That's the strongest memory I have. Does it hurt you still that it was a decently made film but didn't get that love? It doesn't hurt me. In fact, मुझे दुख इसका है कि मैं उसका स्क्रीन प्ले इतना करेक्टली नहीं लिख पाया. बिकॉज वो फिल्म अगर नहीं अप्रिशिएट हुई, वो जब मैं सोचता हूँ तो उसकी खामी थी उसका स्क्रीन प्ले. तो somewhere I felt short in that. Was there a Sindhi connect? There was no Sindhi connect. No. Sorry. Sorry. पानीपत. अब आज भी मैं जब पानीपत के बारे में सोचता हूँ तो मुझे मन में एक विचार ये आता है कि hats off to the Marathas. Oh yeah. Hats off to all the different people of Maharashtra. कि उन्होंने उस वक्त 1000 किलोमीटर ट्रैवल किया to fight somebody else's battle. Wow. But while seeing somebody else's battle, the feeling of one nation, ये बहुत इम्पॉर्टंट उनमें फीलिंग थी की ये हमारा देश आहे. तर मी जेव्हा पानिपत बद्दल आजही विचार करतो तर फिल्मपेक्षा जास्त मला महाराष्ट्राच्या लोकांची, मराठी माणसाची, मराठांची, पेशव्यांची ही गाथा की त्यांनी कसं त्यावेळेला 1000 किलोमीटर जाऊन एक जो इन्व्हेडर होता त्याला थांबवायला ते गेले. कोणाच्या सांगण्यावरून? दिल्लीच्या. त्यांना काही गरज नव्हती तिकडे जायची. पण एक आपलं राष्ट्र आहे आणि बाहेरचा माणूस येऊन आपल्याला येऊन एक आपलं राज्य करेल हे होता कामा नये या विचाराने त्यांचं जाणं. त्यामुळे आजही मला पानिपत म्हटल्यावर मला एकदम माझं रक्त एकदम खवळून उठतं. विथ लव अँड विथ ग्रेट प्राइड. And the one project जिसके लिए आपको जावेद साहब ने कहा वाह क्या मूवी बनाई है खेले हम जी जान से. And you said वाह काश इन्होंने इसको बोला था मत बनाओ, because most of your projects he says don't make. Yeah. And he said I love this one. Yeah. But love this one means before or after he watched. And you also said कि अभी भी आज भी लोग उसको enjoy करते हैं. People loved watching. Yes. मेरी मेमोरी तो खेले हम जी जान से के लिए उन बच्चों के लिए ही है कि किस तरह से उन बच्चों ने 13 साल के बच्चे और 15 साल के बच्चे और किस तरह से उन्होंने देश के लिए बलिदान किया. एंड उसकी अभिषेक, दीपिका, उन्होंने बहुत अच्छा उन दो कैरेक्टर्स को निभाया, सूर्य सेन और कल्पना दत्ता का. तो आई थिंक दैट माय मेमोरी फॉर दैट इज ऑल द सीन्स विद दोज चिल्ड्रन, विद अभिषेक एंड दीपिका ऑफ कोर्स. Do you tell जावेद साहब कि आपने मुझे क्यों नहीं बोला मत बनाओ, अभी हमारी मूवी में मत बनाओ, ये बोलो, ऐसे हो गया है क्या आप दोनों के बीच में से? नहीं ऐसे कुछ नहीं. Okay, there's another movie which I saw you acted in, इंद्रजीत, बिग बी के साथ, बिग बी वाली मूवी है ये. Yeah. What did you have scenes with him? Just one scene actually. And उस एक सीन में उन्होंने मुझे मेरा कत्ल कर दिया. So I was a villain in that, one of the villains. And you were perceived as a villain because of your looks and your height and your body or whatever. तो आपको अच्छा लगा कि आप villain थे, कि आपको लगा ये क्या हो गया है, किसी ने मार डाला है? Like नहीं, I really enjoyed that because उसमें एक बहुत important गाना था, R.D. बर्मन जी का गाना था वो, रेशमी जुल्फे. And to be doing a song, choreographer P.L. Raj साहब थे. तो it was a very different zone I got into with that film. तो बहुत मज़ा आया. कादर खान साहब के साथ काम करने का मौका मिला. एंड यू नो समटाइम्स आप कुछ फिल्में आप करते हैं जस्ट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द ग्रेट्स. तो ये फिल्म में अमित जी के साथ एटलीस्ट आई गॉट अ चांस टू शेयर, नॉट वेरी होलसम बट एटलीस्ट आई शेयर्ड द स्क्रीन स्पेस विद हिम. यू इमिटेट ना थोड़ा सा, क्या बोला था अमित? नहीं, बट आफ्टर दैट माई गुड फॉर्चून, लगान और जोधा अकबर के लिए उनकी आवाज़ हमको मिली एज अ नरेटर. You're beautiful. Because we're in the world of internet, just my last question, are there any people you watch, you enjoy, you laugh and you feel wow, the world of the internet is kamal, especially the gram, Instagram दुनिया में है हम.
कोई है जिनको आप फॉलो करते हो और एंजॉय करते हो? नहीं, not so much actually. Not so much. No. But do you realize it's such a powerful tool today? It is. I respect it. I respect it. Instagram, social media. I respect the entire medium. But मैं अभी तक उसमें डाइव नहीं कर पाया हूँ जितना मुझे करना चाहिए था. Because स्क्रिप्ट लिखना और फिल्मों पे मेरा इतना ध्यान रहा है कि I've not been able to dive. But I am going to do that now. Yes, I hope to connect with you there, and thank you very much for coming to Radio City. Yes, Do thank you you. have some words for your experience at this radio station, just being here and sharing your your life and times with us? Well, it has been absolutely wonderful to be here. I like the catchphrase of Radio City, which is FM bole to. I like that a lot because it has a slightly exclusive quality to it. FM means Radio City. So I wish all the entire team of Radio City all the very best and great success in this coming year. And radio के लिए क्या आपकी राय है? क्योंकि लोग बोलते हैं it's the medium of the past. But if there is a memory that's connected to Ashutosh sir for radio, और radio के क्या मायने हैं? Well, मैं नहीं मानता कि रेडियो इज अ थिंग ऑफ द पास्ट. मुझे अभी भी लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है ये. आज भी इफ़ यू गो इनटू हार्ट, ऑफ कोर्स शहरों में क्या है, ऑल्टरनेट मीडिया बहुत सारा आ गया है, तो हम डाइवर्ट हो जाते हैं उसमें. लेकिन हार्टलैंड में अब भी रेडियो इज़ द मोस्ट पावरफुल मीडियम. तो और मैं हर दिन एटलीस्ट मेरा आधा से 1 घंटा रेडियो सुनने में जाता है आज भी. So I'm a complete radio guy in that sense. What time of the day? And So it's usually in the mornings and at night. is it when you're traveling or? Yeah, when I'm traveling. Yeah. So in the Because car- that's the only way I try to keep in touch. Actually, radio set बहुत कम लोगों के घर में है. ये भी हाँ. एक बात हो गई है. हाँ. But thank you, sir. Thank you again. Thank you. Thank you. Radio City. Radio City. Radio City. Radio City. रग रग में दौड़े सिटी.